اس نے کسی ہمدرد نوجوان کی مدد سے زخمیوں کو نکالا اور ایک ایمبولینس میں سوار کرا دیا جو ہمیں ہسپتال لے آئی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس ہمدرد کشمیری کانسٹیبل کو لاشوں سے بھرا ہوا ٹرک دیکھ کر اس قدر صدمہ ہوا کہ وہیں اس پر دل کا دورہ پڑ گیا۔ ٹرک میں کتنے زخمی تھے؟ غیر ملکی صحافی نے پوچھا۔ فاروق کی کہانی سن کر اسے سردی کے باوجود پسینہ آ گیا تھا۔ 3 فاروق نے جواب دیا۔ اور لاشیں 34-35 سے کم نہیں ہوں گی، فاروق نے جواب دیا۔ پولیس کنٹرول کے مطابق اس فائرنگ میں کم از کم 100 افراد ہلاک ہوئے ہیں، سری نگر کے صحافی نے غیر ملکی کو بتایا۔ 60 لاشیں مل چکی ہیں، باقی غائب ہیں۔ ممکن ہے کہ ٹرکوں میں بھر کر دریا برد کر دی گئی ہوں۔ غیر سرکاری اعداد و شمار اور زیادہ بھیانک ہیں۔ ان کے مطابق کم از کم 200 افراد شہید ہوئے ہیں۔ مائی گاڈ! غیر ملکی صحافی اپنا کیمرہ اور ٹیپ ریکارڈر سنبھالتا ہوا بون اینڈ جوائنٹ اسپتال کے ایمرجنسی سینٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف ناچ رہا تھا۔ گولیاں مار کر ہڈیاں توڑنے کے واقعات بے حد بڑھ گئے ہیں، اسپتال کے ڈاکٹر نجیب نے بے بسی کے عالم میں صحافیوں کو بتایا۔ وہ او پی ڈی کا انچارج تھا اور آج اسے سر اٹھانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ او پی ڈی میں فائرنگ کے ایسے زخمی موجود تھے جن کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں یا ہاتھ۔ ایسا لگتا ہے جیسے زخمیوں کو تاک تاک کر گولیاں ماری گئی ہوں۔ ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کو اگر فوری طبی امداد مل جاتی تو یہ سنگین کیس نہیں بنتے، لیکن زخمی گھنٹوں تک سڑک پر پڑے رہے اور ان کا خون بہتا رہا۔ مقامی صحافی دانت پیستے رہے اور غیر ملکی خوفزدہ نظروں سے زخمیوں کو دیکھتے رہے جو فرش پر بھی پڑے تھے، بستروں پر بھی اور بینچوں پر بھی۔ مقامی صحافی سوچ رہے تھے کہ اب قلم بھی غاصبوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ غیر ملکیوں کی سوچ یہ تھی کہ کشمیری اب گولیوں کی بوچھاڑ سے بھی دبنے والے نہیں۔ ایسا کب تک ہوگا؟ لال چوک کے قریب تھانے میں 4 پولیس والوں کی لاشوں کے گرد جمع افراد میں سے اکثر اپنے سینے پیٹ رہے تھے۔ یہ بھی پولیس والے تھے اور ان کے 4 ساتھی فوج نے عین اس وقت قتل کیے تھے جب یہ چاروں زخمیوں کو بچانے کے لیے انہیں اٹھا رہے تھے۔ یہ شہید ہیں، ایک ہیڈ کانسٹیبل پھٹی ہوئی آواز میں داڑا۔ ہمارے شہید غاصبوں کے خلاف جہاد میں کشمیری پولیس کا عطیہ ہیں یہ۔ ڈی جی کہاں مر گیا؟ ایک جوان نے اپنی رائفل دیوار پر مار کر جنونی انداز میں للکارا۔ کہاں گیا وہ خبیث جو کہتا ہے کہ ڈی جی پولیس مرد آباد؟ تھانے میں نعرے گونجنے لگے، خون کا بدلہ خون، بھارتی فوج ہائے ہائے۔ جلد ہی یہ خبر تمام تھانوں میں پھیل گئی کہ بھارتی فوج نے کشمیر آرمڈ پولیس کے 4 جوانوں کو شہید کر دیا ہے اور ان کی لاشیں تھانے میں رکھی ہوئی ہیں۔ پولیس چوکیوں تک یہ خبر پہنچی تو وہاں تعینات پولیس والے چوکیاں چھوڑ کر لال چوک کی طرف آنے لگے۔ حالات نے انتہائی خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ پولیس والے بکھرے ہوئے تھے، انہیں نہ صرف اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا غم تھا بلکہ ان درجنوں کشمیریوں کا بھی جو چند گھنٹے قبل بھارتی فوج کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد پولیس والوں کا بپھرا ہوا جلوس ڈائریکٹر جنرل پولیس کے دفتر کا گھیراؤ کر چکا تھا۔ خون کا بدلہ خون کے نعرے ان فوجیوں کو بھی خوف زدہ کرنے لگے تھے جو بختر بند گاڑیوں میں ارد گرد موجود تھے۔ تم خود جاؤ قریشی، گورنر نے پولیس میں بغاوت کی خبر سنتے ہی اپنے مشیر کو حکم دیا۔ جاؤ خود جا کر حالات کو سنبھالو، وہ تمہیں جانتے ہیں، تمہاری بات پر یقین کر لیں گے، مگر میں ان سے کیا کہوں؟ جمیل قریشی نے پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس پریڈ کی سلامی لینے اور باغی پولیس والوں کا سامنا کرنے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ کہہ دینا کہ ان کی شکایت پر بھرپور غور کیا جائے گا، گورنر نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ان سے کہنا کہ سرکار مذاکرات کے لیے تیار ہے اور یہ بھی کہ گورنر ہاؤس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ ٹھیک ہے، قریشی اٹھ گیا، میں ان سے وعدہ کر لوں؟ جتنے چاہو، گورنر نے اپنے مخصوص انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ تمہیں وعدے کرنے کا پورا اختیار ہے قریشی، آخر میرے مشیر ہو، فاروق عبداللہ کے نہیں۔ جمیل قریشی کے جاتے ہی گورنر جگموہن نے ٹیلی فون سنبھال لیا۔ اس نے پہلا فون جنرل زکی کو کیا۔ زکی مائی فرینڈ، پولیس والوں نے بغاوت کر دی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ نرم تھا۔ وہ کچھ دیر تک جنرل کا جواب سنتا رہا اور پھر اس نے مستحکم لہجے میں حکم جاری کرنا شروع کر دیا۔ قریشی وہاں خود پہنچ رہا ہے، وہ انہیں باتوں میں لگا لے گا، اس طرح تمہیں وقت مل جائے گا زکی۔ اس دوران تم فوج کے دستے ڈی جی آفس تک پہنچا سکو گے، یوں تمہارا رعب قائم ہوگا اور تم یہ تاثر بھی دے سکو گے کہ اگر انہوں نے زیادہ گڑبڑ کی تو جموں کشمیر پولیس کو غیر مسلح کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تم یہ کرو کہ سی آر پی ایف کے دستوں کو متاثرہ تھانوں پر قبضہ کا حکم دے دو۔ زکی سے گفتگو کے فوراً بعد گورنر نے سی آر پی کے کمانڈنٹ کو فون کیا اور پھر آئی جی پولیس یعنی سی آئی ڈی امرپور کو۔ سب سے آخری فون اس نے کمشنر جلیل خان کو کیا، جس کی رپورٹ یہ تھی کہ سی آر پی کے دستے متاثرہ تھانوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ واہ!
जगमोहन ने रिसीवर रख कर कहकहा लगाया, ज़की बहुत तेज जा रहा है, मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। 22 जनवरी की सुबह तुलू हुई तो सिकंदर की हालत गैर हो रही थी। वो मुसलसल 96 घंटे से जाग रहा था। रात भर की इतलात ने उसको जुनूनी कैफियत में मुब्तला कर दिया था। 200 अफराद की शहादत बहुत अलमनाक थी। उसने बेहद जुल्म के बारे में पहले से सोच रखा था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि जालिम जुल्म की आखिरी हद से भी तजावज कर जाएंगे। ये इतलात और ज्यादा करबनाक थी कि सिर्फ श्रीनगर में 1000 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। घर घर तलाशी की मुहिम के दौरान खवातीन की बेहुरमती भी की गई है। उसने नहार मुंह सिगरेट सुलगाते हुए रेडियो खोल लिया। BBC की उर्दू नशरियात जारी थी और फारूक अब्दुल्ला का ये बयान नशर हो रहा था कि जगमोहन ने अपना ओहदा संभालते ही पैरामिलिट्री फोर्स को हुक्म दिया है कि वो जो चाहे करे। इसी बायस पैरामिलिट्री फोर्सेज ने जुल्म की इंतहा कर दी है। बच्चों तक को मारा पीटा जा रहा है। ब्रादर, चाय। एक दराज कद नौजवान ने चाय का प्याला उसके सामने रख दिया। वो फर्न पहने हुए था और फर्न के नीचे पिस्तौल साफ नजर आ रहा था। इनायत, मेरा ख्याल है कि अब मुझे भी तुम्हारे खिलौनों को चलाने की तरबियत हासिल करनी होगी। सिकंदर ने पयमुर्दा अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, इसकी तरबियत हासिल करना अब सबका फर्ज होना चाहिए ब्रादर। इनायत ने जवाब दिया। वो पहलगाम से तरबियत लेकर हाल ही में आया था। श्रीनगर के अस्करी शोबे में उसकी शमूलियत जिहाद के लिए तकवीयत का बायस थी। वो रात भर यही बहस करते रहे थे कि नौजवानों को गुरेला जंग की तरबियत के लिए अफगानिस्तान बाकायदगी से भेजा जाए। अब सिकंदर की भी यही ख्वाहिश थी कि वो सियासी नोयत की जिम्मेदारियां छोड़ छाड़ कर कंट्रोल लाइन पार करे और मुजाहिदीन की सरजमीन अफगानिस्तान पहुंच जाए। वो कुछ देर तक खामोश रहे। चाय पीने के बाद सिकंदर ने एक और सिगरेट सुलगा ली। जरा फहीम को तो बुला लो, शायद वो मुझे नसीम बाग तक पहुंचा सके। मेरा वहां पहुंचना बेहद जरूरी है। फहीम तैयार है, बिस्मिल्लाह, इनायत ने जवाब दिया। तो सिकंदर उन्हीं कंटोप और फन पहन कर मिनटों में तैयार हो गया। उसने बर्फबारी के दौरान पहने जाने वाला चश्मा भी लगा लिया, ऊपर से चादर ओढ़ ली। इस तरह उसका हुलिया ही बदल कर रह गया। अब करीब से देखने वाला भी उसे मुश्किल ही से पहचान सकता था। यह सब कुछ पाकिस्तान का किया दरा है। गवर्नर जगमोहन ने गैर मुल्की सहाफियों के एक पैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, 22 जनवरी की सुबह तक राजभवन में कई गैर मुल्की सहाफियों के टेलीफोन आ चुके थे। वो सब जगमोहन से इंटरव्यू करने के ख्वाहिशमंद थे। उनका कहना था कि वो 21 जनवरी के कत्ले आम पर बात करना चाहते हैं, लिहाजा जगमोहन ने उन्हें एक साथ बुला लिया था। उस वक्त वो उन्हें ये बता रहा था कि पाकिस्तान कश्मीर की दहशतगर्दी में मुलविस है। ये इल्जाम पाकिस्तान पर आम तौर पर लगता है, मगर अभी तक भारत की तरफ से इस इल्जाम का सबूत फराहम नहीं किया जा सका। पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं, वो कश्मीरी दहशतगर्दों को तरबियत दे रहे हैं, लड़ रहे हैं हमसे। इसके अलावा और क्या सबूत चाहिए? क्या आपने किसी पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया? गिरफ्तार? हाँ, गिरफ्तार भी कर लेंगे। हमें इसकी इत्तला जरूर दीजिएगा गवर्नर साहब, एक सहाफी ने चुभते हुए लहजे में दरखास्त की। और फिर आप पाकिस्तान में सियासतदानों के बयान भी देखें। जगमोहन पहलू बदल कर बोला, जना यानी कायदे आज़म से बेनजीर भुट्टो तक सबके बयानात उठा लें। सब एक ही राग अलाप रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके बयानात वाकई एक जैसे हैं जनाब गवर्नर। जना से बेनजीर तक सभी एक बात कह रहे हैं, लेकिन भारतीय नेता तो बार बार कलाबाजी खा जाते हैं। नेहरू ने कहा था कि कश्मीर के मसले का हल कश्मीरी आवाम की मर्जी के मुताबिक होगा। फिर नेहरू ने इस वादे को पूरा नहीं किया। कश्मीर के उस वजीर आजम ही को बरतरफ कर दिया जो रियासत के भारत से इल्हाक के खिलाफ था। मेरी मुराद पंडित रामचंद्र काक से है। ये सियासी बहस है। जगमोहन ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, मैं जुल्फकार अली भुट्टो की बात कर रहा हूँ। क्या कहा था उसने? सलामती कौंसिल में तकरीर करते हुए कश्मीरियों को उकसाया था। कहा था कि भारत वहाँ जुल्म कर रहा है। पोलैंड के यहूदियों पर मुजालिम की अफसोसनाक याद अभी बाकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की मजलूम बस्तियों में इंसानी गोश्त का ताफुन है। उन्हें संग दिल और आदि जारे ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है और ये खूंखार वहशी की तरह रास्ते में रुकावट बनने वाली हर चीज को तबाह करने पर तुला हुआ है। यानी कश्मीर का हुस्न और जिंदगी। वो हुस्न तबाह कर रहा है, जिंदगी तबाह कर रहा है। पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा और न भारत को इस अमर की इजाजत देगा कि वहाँ अपने जालिमाना इक़दामात जारी रखे। अगर अक़वाम मुत्तहिदा हरकत में न आई और ला ताल्लुक रही तो पाकिस्तान इस चैलेंज को कबूल कर लेगा। फिर वो जिंदगी और मौत के हतमी नताइज के लिए तैयार होगा। इज्जत से जिंदा रहेगा या मर जाएगा। आपको भुट्टो की तकरीर तो रटी हुई है। एक फोटोग्राफर ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए दाद दी। हाँ, मुझे हर पाकिस्तानी लीडर की तकरीर रटी हुई है। वो उकसाते हैं कश्मीर को, मुदाखलत कर रहे हैं कश्मीर के मामलात में। जगमोहन ने बड़े फख्र से कहा, मैं आपको सबूत देता हूँ पाकिस्तान की मुदाखलत के। अभी 1999 खत्म हुआ है।
दिसंबर में पाकिस्तानी कश्मीर के इलाके में 11 जमाती इत्तेहाद बनाया गया। किस लिए? कश्मीर में जिहाद की हिमायत के लिए। इस महीने जनवरी में इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद ने इसी मकसद की खातिर एक खुसूसी सेल कायम किया है। पीपल्स पार्टी भी कश्मीर कार्ड इस्तेमाल कर रही है। जमात इस्लामी का किरदार तो बड़ा घिनौना है इस खेल में। वो लड़ाई की बात करती है, जंग के जरिए कश्मीर का फैसला कराना चाहती है। मुस्लिम लीग भी कश्मीर का झंडा उठाए हुए है। पाकिस्तानी अखबारात उठा कर देख लें, यहाँ जरा सा हंगामा हो, लीड वहाँ लगती है। नवाज शरीफ ने कश्मीर के मसले पर यौम दुआ की अपील की तो 19 जनवरी को हड़ताल हो गई वहाँ। नवाज शरीफ का बयान था कि मुजाहिदीन कश्मीर से यकजहती के इजहार के लिए दिन मनाया जाए, तो इस अपील पर वो सब के सब मुत्तहिद हो गए। ना पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ किया, ना जमात इस्लामी ने। बेनजीर के वजीर खारजा साहिबजादा याकूब पूरी दुनिया में कहते फिरते हैं कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की मुकम्मल हिमायत करता है। पीपल्स पार्टी वहाँ की हुक्मरान जमात है और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हिजबुल इख्तलाफ, लेकिन कश्मीर के मसले पर दोनों मुत्तफिक हैं। आपकी इस गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि पाकिस्तानी अवाम कम अज कम मसला कश्मीर पर मुत्तफिक है। एक सहाफी ने हंस कर कहा, लेकिन यह सबूत नहीं मिलता कि पाकिस्तान दहशत गर्दी में मुलविस है। जनाबे गवर्नर, एक गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के लिए काम करने वाला मकामी सहाफी बहुत कशीदा लहजे में बोलने लगा। कल श्रीनगर की सड़कों पर खून की जो होली खेली गई है, क्या वो दहशत गर्दी नहीं? वो लोग क्रॉस फायरिंग में मारे गए। गवर्नर ने जवाब दिया। ये जवाब ऐसा था कि तमाम सहाफी उछल पड़े। उन्होंने बड़ी हैरत से गवर्नर की तरफ देखा। वो जानते थे कि जगमोहन सफेद झूठ बोल रहा है। गवर्नर साहिब ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत कर दी है कि वो बेगुनाहों पर किसी किस्म की ज्यादती न होने दें। जमील कुरैशी ने लुकमा दिया। कल मारे जाने वाले बेशतर अफराद तकरीबकार थे। दुरुस्त, जगमोहन ने कहा। मैंने कहा है कि इस नोयत का वाकया ना हो। दफातन फोन की घंटी बजने लगी। गवर्नर ने फोन उठा लिया। क्या हुआ? उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। जवाब सुनकर उसने हंकारा भरा और फिर बोला, जितनी चाहो कुव्वत इस्तेमाल कर लो, ये जुलूस जल्द से बंद होने चाहिए। ये कहकर उसने रेसीवर पटक दिया। सहाफियों ने पल भर में सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया। वो तेजी से अपना सामान समेटने लगे। श्रीनगर में आज फिर मौत का रक्स हो रहा था। हलवाल के इलाका आलमगिरी बाजार में मौत नाच रही थी। कल की सफाकी पर लोग एहतजाज करने के लिए पूरी वादी से श्रीनगर आए थे। उनके जुलूस को आलमगिरी बाजार तक आने दिया गया था और फिर निहत्थे लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी गई थी। लोगों ने फायरिंग से बचने के लिए दूसरे रास्ते इख्तियार किए, मगर आज फौज ज्यादा मंसूबाबंदी करके आई थी। तमाम रास्ते बंद थे। बेगुनाहों को हर तरफ से घेर कर बंदूकों के मुंह खोल दिए गए। लगता था जैसे जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई जा रही है। तब वहाँ जनरल डायर था, अब यहाँ जनरल जकी था, जिसकी रस्सी जगमोहन के हाथ में थी। लोग गिरने लगे। जख्मी गिर गिर कर उठ रहे थे। कुछ ने भागने की कोशिश की तो उन्हें भी ढेर कर दिया गया। श्रीनगर में कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज करने वाले भी कत्ल किए जा रहे थे। फायरिंग बढ़ने लगी। आलमगीर बाजार आहों, चीखों और नालों की आवाजों से लरजने लगा। हर तरफ खून बह रहा था, सुर्ख और गाढ़ा खून। सीआरपीएफ की 24वीं बटालियन के हवालदार नारायण चौधरी ने अपनी स्टेन गन से निशाना लिया और फिर उसकी गन गोलियां उगलने लगी। उसने ऐसे 10-11 साल लड़के का निशाना लिया था जो गोलियों की बौछार से बचने के लिए एक ट्रक की आड़ लेना चाहता था। स्टेन गन का पूरा बरस्ट उस बच्चे के सीने पर लगा। सीना फट गया। लड़के ने बड़ी हैरत से नारायण चौधरी की तरफ देखा। उसकी काली आंखों में हैरत की जगह नफरत ने ले ली। नारायण को एक लम्हे के लिए उससे खौफ महसूस हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे उसका ये खौफ दूर हो गया। उसने जोरदार कहकहा लगाकर थूक दिया। लड़का गिर चुका था। उसका जिस्म साकत था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। उसकी इन आंखों में मौत के बाद भी नफरत सुलग रही थी। नारायण चौधरी को उस वक्त ये अंदाजा न था कि ये नफरत उसका कहां तक पीछा करेगी। और वो भी 22 जनवरी ही को मारा गया, जो गांधी के नजरिया अदम तशद्दुद का बहुत बड़ा हामी था। अजलाल हुसैन की उम्र सिर्फ 32 साल थी, लेकिन वो अब तक 4 किताबें तसनीफ कर चुका था। इस मशहूर रिसर्च स्कॉलर ने गांधी के फलसफे पर भी एक किताब लिखी थी। उस रोज वो अदम तशद्दुद की पैरवी करने के लिए ही घर से निकला था कि गांधी के फौजियों ने उसे छलनी कर डाला। अजलाल हुसैन की मौत उसके खानदान में गांधी की मौत बनकर आई थी। उस रोज मरने वालों की तादाद 100 से कम नहीं थी। जख्मी लातादाद थे और अस्पतालों में एक बार फिर खून कम पड़ गया था। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि लोग क्या चाहते हैं, सिकंदर ने वायरलेस पर झुक कर कहा। दूसरी तरफ आसिम था। उसकी रिपोर्ट यह थी कि वादी में फौज ने तमाम पेट्रोल पंप बंद करा दिए हैं ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम मफलूज हो जाए। हर शहर, कस्बे और गांव में कर्फ्यू नाफिज हो चुका था।
उसने कम्युनिकेशन सेंटर से बाहर नसीम बाग के इलाके में दूर दूर तक फौज गश्त कर रही थी। कुछ देर कबल उसे इत्तला मिली थी कि मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में तारीख का सबसे बड़ा जुलूस निकाला गया है जो श्रीनगर में कत्लेआम पर मातम कर रहा है। लोग सिर्फ आजादी चाहते हैं। आसिम ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। इतनी जबरदस्त फायरिंग के बाद जज्बात और ज्यादा मुश्ताइल हैं। भारतीय कुत्तों वापस जाओ के बैनर लग रहे हैं। अब आम दुकानदार को भी अपने नुकसान की फिक्र नहीं। वो हर कीमत पर भारत के खिलाफ जदोजहद के लिए आमादा हैं। उन्हें समझाओ कि इस तरह अपना खून न बहने दें। सिकंदर भराए हुए लहजे में बोला, सुनो बरादर, अब इस वक्त उन्हें तंजीम की जरूरत है। अपने सियासी ग्रुपों से कहो कि वो उन्हें मुनज़्ज़म करें। गुज़श्ता 2 रोज में जो कत्लेआम हुआ है वो बेनज़म जुलूसों का नतीजा है। तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि चंद टोलियां खुद को असर नो मुनज़्ज़म करके रवाना हो गई हैं। अब भारतीय फौज को हर गोली का जवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आसिम ने कहा। और हाँ, एक पैगाम तुम्हारे लिए है, ये कि तुम जहाँ भी हो वहीं रहोगे। मगर क्या अगर मगर की कोई गुंजाइश है? आसिम का लहजा बेहद स्पाट था। नहीं, सिकंदर ने खुश्क लहजे में जवाब देकर राब्ता खत्म कर दिया। जगमोहन के लिए नई इतलात बेहद मायूस कुन थी। श्रीनगर में नामालूम अफराद की फायरिंग से गश्त पर मौजूद एक फौजी दस्ते का लाइंसनाक मारा गया। कश्मीर पुलिस की मुतादद यूनिटों ने हड़ताल कर दी थी। इस्लाम आबाद यानी अनंतनाग में फौज से जमकर मुकाबला किया गया। कई इलाकों में पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था और ताज़ा तरीन इतला ये थी कि हुर्रियत पसंद तंजीमों ने अवाम से अपील की थी कि वो सरकारी टैक्सों की अदायगी बंद कर दें। सिविल नाफरमानी की इस तहरीक का ऐलान पोस्टरों और बैनरों के जरिए हुआ था। ये पोस्टर अचानक ही नजर आने लगे थे और जगमोहन की एजेंसियों ने शक जाहिर किया था कि पोस्टर लगाने का काम औरतें कर रही हैं। अगले रोज के अखबारात ने जगमोहन को नचा कर रख दिया। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी का यह बयान जिली सुर्खियों के साथ शाया किया गया था कि अब कश्मीर की सूरत हाल हाथ से निकल चुकी है। बकता है, जगमोहन ने अखबार फेंक कर कहा। इक्तदार से महरूम होने के बाद हर शख्स इसी तरह की बकवास करता है। बड़ा या नेहरू का नवासा, उसकी माँ ने भी तो सिखों को कत्ल किया था, उसके खिलाफ बात क्यों नहीं करता? जमील कुरैशी सर हिलाने लगा। उसे जगमोहन की हर बात पर सर हिलाने की आदत सी पड़ गई थी। उसी वक्त खास टेलीफोन की घंटी बजने लगी। ये फोन कमिश्नर श्रीनगर जलील खान का था। बोलो, क्या बात है? जगमोहन ने दाड़ कर कहा। क्या लोगों ने टैक्स अदा करने बंद कर दिए? अभी इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली सर। इस अपील को अभी एक ही दिन हुआ है। तो क्या राजीव के बयान पर कश्मीरी जश्न मना रहे हैं? सॉरी सर, मैंने आपको सिर्फ ये इत्तला देने के लिए फोन किया है कि अकाली लीडर सिमरनजीत सिंह मान श्रीनगर पहुंच गए हैं। क्या मतलब? क्यों आया है वो? कैसे यहाँ पहुंचा? किसने इजाजत दी है उसे? इस बारे में तफसीलात का इल्म नहीं सर। मुझे उनके फोन ही से इत्तला मिली कि वो श्रीनगर आ चुके हैं और उनका मुतालिबा है कि उन्हें और उनके मुसल्लह मुहाफिजों को स्टेट गेस्ट हाउस में रहने की इजाजत दी जाए। और क्या मुतालिबे हैं उसके? मान का नाम सुनकर ही जगमोहन का दिल डूबने लगा था। उसे खदशा था कि वो मुसलमानों से कोई खुफिया समझौता करने आया है। यह कि उन्हें गवर्नर से मुलाकात का वक्त दिलवाया जाए। मैं उससे जरूर मिलूंगा। जगमोहन ने जवाब दिया। उसकी रिहाइश का इंतजाम करा दो और खबरदार, उसकी निगरानी इतनी कड़ी हो कि उसकी सांसें भी गिनी जा सकें। समझ गए? यस सर। जलील खान के जवाब पर गवर्नर ने रिसीवर पटक दिया। अब वो किसी दरिंदे की तरह कमरे में टहल रहा था। यह है कारकर्दगी हमारी एजेंसियों की कुरैशी, वो चिल्ला कर बोला। किसी भी एजेंसी ने सिमरनजीत सिंह मान की आमद की इत्तला नहीं दी। किसी को पता ना चला। मुझे हैरत है कुरैशी, वो क्यों आया है यहाँ? किस मिशन पर? ये अमर कपूर जग मारता रहा अब तक। आखिर उसे DIG का इंस्पेक्टर जनरल क्यों बनाया गया है? शायद अमर कपूर को भी उसी वक्त फोन करना था। उसका फोन जमील कुरैशी ने उठाया और गवर्नर की तरफ रिसीवर बढ़ा दिया। IG CID सर। जमील का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही जगमोहन ने रिसीवर झपट लिया। क्या कर रहे हो तुम? उसने दाड़ कर पूछा। मान यहाँ पहुँच गया और तुम्हें इसकी इत्तला ही नहीं? मुझे इसकी इत्तला नहीं थी सर, मगर अब उस पर मेरी कड़ी नजर है। बोलो, क्या रिपोर्ट है तुम्हारी? सिमरनजीत सिंह मान ने कुछ देर कबल गैर मुल्की अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू की है और इस सारी गुफ्तगू का लुबे-लुबाब ये है कि सरकार को कश्मीर में ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी किसी कार्रवाई से गुरेज करना चाहिए। क्या मतलब? जगमोहन चौंक पड़ा। ये बात अभी तक किसी गैर के इल्म में नहीं थी कि जगमोहन ने कश्मीर में हर नौयत की कार्रवाई का ऑपरेशन ब्लू स्टार 2 के नाम से करने का फैसला किया है। इस बात से सिर्फ चंद अफराद ही वाकिफ थे और वही फाइलों पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का कोड इस्तेमाल करने के मजाज थे। अमर कपूर, गवर्नर ने सरसराते हुए लहजे में कहा। मुझे ये रिपोर्ट जल्द मिल जानी चाहिए कि वो किस मिशन पर यहाँ आया है। भारतीय यौम जमहूरिया कश्मीर मुसलमानों के लिए जुल्म और बदतरीन जुल्म बनकर नमूदार हुआ।
بھارتی فوجی گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ان گنت کشمیری مسلمانوں کو شہید کر چکے تھے اور لاتعداد نوجوان ہفتوں سے غائب تھے۔ ان میں سے بیشتر یا تو گرفتار تھے یا انہیں بے دردی سے قتل کر کے ان کی لاشیں دریا برد کی جا چکی تھی۔ اس ماحول میں جب حریت پسند تنظیموں نے سول نافرمانی کی اپیل کی تو پوری وادی متحد ہو گئی۔ ہر جگہ بھارت کے خلاف نعرے گونجنے لگے۔